Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor, University of Education, Lahore. Welcome to join this lecture. My dear students, as you know that we are discussing about the course Introduction to Guidance and Counseling. And this course is of BA Donors and the course code is EDUC 3142. You know, we were discussing about different services of guidance in our previous lectures. So we discussed orientation service of guidance. We also explained in detail about testing service of guidance. And we also discussed about placement service and follow-up service of guidance. So today we are going to explain the concept of educational and occupational service of guidance. What actually is educational and occupational service, what is the need of this service, and how the counselor and teacher can provide educational and occupational service to his clients. So let's discuss about this service of guidance. So first of all, we are going to discuss the need of this service. Students want to know about jobs, work processes, training required, average income, status of work, and future prospects. So they want knowledge about all these areas and all these topics. What are different jobs in the market? What is the work process? What type of training required for every occupation? And they also want to know about the average income. What is the status of work? And what is the future of that occupation? So all these areas are very important and they need to know about it. So it's very important for a counselor to provide better counseling and proper knowledge and accurate information related to these topics and these areas. So the students and clients also need help in educational and vocational planning. How to plan? So this area is also very important and the proper information should be provided to your clients. So it's needed to inform about different courses and career opportunities. So there are different courses and different career opportunities. So as a counselor, it's your duty to guide them and to inform them properly and accurately related to different career opportunities and related to different courses, and providing them best knowledge and the best information which they want. So what is the status of occupational service of guidance? The occupational service of guidance is very useful for students of secondary and higher secondary classes. तो यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि ख़ास तौर पर जो सेकेंडरी क्लासेस हैं और हायर सेकेंडरी क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पर ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत होती है. दे वांट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस और वो चाहते हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से उन तक पहुँचे. और इस सिलसिले में एक काउंसलर जो है, एक टीचर, वो अपना रोल प्ले कर सकता है एंड ही कैन परफॉर्म हिज प्रॉपर रोल इन दिस रिगार्ड by providing accurate information and knowledge related to different occupations and their importance. It's a service designed to assist pupils to explore the world of work by propagating accurate, valid, and useful information about educational and vocational opportunities, their characteristics, demands, and requirements. तो ये एक ऐसी सर्विस है कि जो एक्चुअली असिस्ट करती है स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को. दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ वर्क. और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो यूज़फुल भी हो, वैलिड भी हो और एक्यूरेट भी हो, जिसको आप प्रोपेगेट करेंगे, जिसको आप फैलाएंगे, दैट शुड बी रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. कि किस तरीके की वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है. आपने किस प्रोफेशन में जाना है, कौन सा ऑक्यूपेशन आपने सिलेक्ट करना है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं. So it's your duty as a counselor to explain in detail to your clients about it.
their characteristics, demands and requirements. तमाम चीज़ों के बारे में आप बेहतर तौर पर बताएंगे अपने क्लाइंट्स को ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, एंड दे आर एबल टू चूज़ द बेस्ट ऑक्यूपेशन according to their needs, according to their interest, motivation, and according to their educational background. So more specifically, the Occupational Information Service provides information about various vocational courses. तो ख़ास तौर पर ये जो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस है ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज के हवाले से. Occupational information makes the guidance service informative, motivational, evaluative and is accepted as helpful for the pupils. ये ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन सर्विस आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है और एट द सेम टाइम इट मे बी मोटिवेशनल फॉर यू. ये आपको मोटिवेशन दे रही है, आपको मुतहरिक कर रही है. सो यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इन फ्यूचर एंड व्हाट इज़ द बेस्ट ऑक्यूपेशन. तो इस हवाले से आप प्रॉपर इवेल्यूशन करते हैं, आप जायज़ा लेते हैं तमाम ऑक्यूपेशंस का, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं, उनके लिमिटेशंस को देखते हैं, उनके प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं. तो तमाम पॉइंट्स को सामने रखकर और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद आप सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑक्यूपेशन जो आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो और जो आपके फ्यूचर के लिए यूज़फुल साबित हो सके बाद में. So the pupils of secondary and higher secondary schools have to make choices relating to their future occupation. Choice always involves knowledge and idea. तो अभी हम बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत कहाँ होती है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर. एक्चुअली द स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, आई मीन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल, दे एक्चुअली नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिलेटेड टू different occupations, how to select the appropriate and proper occupation related to their interest and educational background. So they want proper information and knowledge about different occupations, and as a counselor it's your duty to provide them best knowledge and information so that they may be able to select the proper occupation which may be helpful in future for them and to make them motivated. So what is educational information service? This type of information refers information relating to curriculum, syllabus, books, policies and programs of schools. इसमें आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को रिलेटिंग टू करिकुलम, सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, बुक्स के बारे में गाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, और डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो स्कूल्स के हैं उनके बारे में शेयर कर रहे हैं, और आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. डिफरेंट स्कूल्स के, कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं. स्पेशल मेजर्स एंड प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय स्कूल्स एंड व्हाट आर द स्पेशल मेजर्स adopted by different institutions, उसके बारे में भी आप गाइड कर रहे हैं. So information about higher education, colleges and universities, आप स्कूल के बारे में, आप कॉलेज के बारे में, आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और इवन के आप स्पेशली हायर एजुकेशन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को. तो ये एक्चुअली आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर रहे हैं, तो आप ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. और इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट लोन्स, स्कॉलरशिप एंड स्टाइपेंड्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम एट्सेट्रा. आप डिफरेंट अवेलेबल स्कॉलरशिप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट स्टाइपेंड्स के बारे में बता रहे हैं और किस तरीके से डिफरेंट लोन्स जो हैं वो आप ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट और उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए. So you are providing the information related to all these topics. In occupational service of guidance, information relating to different occupations, their nature, requirements, scope and prospects, information about part-time employment
एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एट्सेट्रा। आप एक्चुअली इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में। व्हाट आर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड व्हाट आर देयर प्रॉस एंड कॉन्स, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन आपने सिलेक्ट करना है। सो एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग द बेसिक नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट occupations to your clients, and also you're sharing the nature and requirement of particular occupation, its scope and prospects, और इसके साथ साथ आप ये भी शेयर कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तमाम जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप काउंसलिंग कर रहे हैं उनकी, आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल सर्विस ऑफ गाइडेंस। तो इस ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस में आप क्या चीज़ शेयर करेंगे? तो इसमें नेचर ऑफ वर्क है, वर्किंग कंडीशंस हैं, एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप शेयर करेंगे ताकि आपके क्लाइंट्स, आपके स्टूडेंट्स को मुकम्मल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। आपका क्लाइंट कोई भी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना चाह रहा है तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वर्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, what are the working conditions in different occupations, what type of education required for that, and what type of training required, and also you are providing knowledge about what type of experience required to that particular occupation, ताकि प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और जब वो किसी भी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने के हवाले से सोचें तो उनके पास नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, इसके हवाले से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। सो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल दीज जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस बाय डिफरेंट सोर्सेज। सो व्हाट आर दोज सोर्सेज? वो कौन से ज़राए हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी जॉब के हवाले से, किसी भी ऑक्यूपेशन के हवाले से। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यू मे गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम न्यूज़पेपर्स। आप अखबारात से, न्यूज़पेपर्स से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम एडवर्टीजमेंट्स and Public Service Commission, and also you get information about individual institutions. आप न्यूज़पेपर से, एडवर्टीजमेंट से, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन से, कौन सी वैकेंसीज आई हैं, किस नेचर की जॉब्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इवन के हर अदारा, हर इंस्टीट्यूशन अलग से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसको शेयर करना ज़रूरी है, वो ये है कि रेज़्यूमे कैसे बनाई जाए। सो एक्चुअली यू आर गोइंग टू एनहांस द स्किल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स अबाउट हाउ टू डिज़ाइन प्रॉपर एंड एक्यूरेट रेज़्यूमे। आपने रेज़्यूमे कैसे बनाना है और उसको जब बनाया जाएगा तो वो प्रॉपर भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो वहाँ पे जॉब के लिए जब आप अप्लाई करें तो आपके रेज़्यूमे में वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं उस प्रोफेशन के हवाले से। तो एक्चुअली एज ए काउंसलर and also as a teacher, you are going to enhance the skills for preparing proper and accurate resume. कैसे बनाया जाएगा, क्या इम्पोर्टेंस है रेज़्यूमे की, और वो कौन सी स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि जब वो रेज़्यूमे बनाए या उसके बारे में डिज़ाइन करने के हवाले से सोचे तो आपके क्लाइंट को, आपके स्टूडेंट को एक एक्यूरेट रेज़्यूमे बनाने के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल फील्ड्स। बहुत सारी ऑक्यूपेशनल फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या जिसके हवाले से आप फ्यूचर के हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं। सो उसमें से कुछ हम शेयर कर रहे हैं। दैट इज़ इंजीनियर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स एंड आल्सो पायलट्स। तो ये कुछ थे जो हमने शेयर किए हैं आपके साथ। There are different occupations and different fields you have to select. तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ऑक्यूपेशन आप सिलेक्ट करेंगे उस हवाले से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज पहले से होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर ऑक्यूपेशनल फील्ड सिलेक्ट कर सकें
related to your motivation, interest, educational background, and also keeping in view your future needs. So what are the methods of disseminating information? आप जो information sharing करेंगे ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करने के हवाले से अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उसके मेथड्स क्या हैं? सो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. नंबर वन इज़ इंडिविजुअल मेथड. In individual method, as a counselor, you are focusing on every individual. आप individual method में हर एक individual पे focus कर रहे हैं और उसको guide कर रहे हैं, उसको counseling provide कर रहे हैं, उसकी interest, उसका educational background, उसकी needs, उसका future, all these things you have to keep in mind, and after that you are providing proper guidance to him. तो इंडिविजुअल मेथड में आप हर इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं अलग से. सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. इसमें वक्त ज़्यादा लगता है, आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, और हर एक इंडिविजुअल को जब आप डील करेंगे तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए और आपके पास पैशन भी होना चाहिए. आप खुद भी मोटिवेटेड हों तब ये काम कर सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज़ ग्रुप मेथड. तो ग्रुप मेथड में क्या है कि यहाँ पे आपने इंडिविजुअल फोकस नहीं करना, इसमें आपने तमाम लोगों पे फोकस करना है. और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज दैट यू कैन अप्लाई, दैट इज़ ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन कैन बी प्रोवाइडेड. ओरिएंटेशन डे आप रख सकते हैं, ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और तमाम जितने भी लोग हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप बुलाकर और उनको बता सकते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में, उनके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में. तो ग्रुप मेथड में ओरिएंटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट यू कैन अप्लाई. सो देयर आर अदर टेक्निक्स फॉर ग्रुप मेथड्स. इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप मेथड में, कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकें, इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें अपने क्लाइंट्स तक. तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अलावा और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं. सो देयर इज़ बेस्ट स्ट्रेटजी एज ए टीचर फॉर यू. आप एज ए टीचर अपने सब्जेक्ट और अपने कोर्स को जो आप पढ़ा रहे हैं उसको लिंक कर सकते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के साथ. सो एक्चुअली यू आर गोइंग टू लिंक योर सब्जेक्ट एंड कोर्स विद डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आप किस ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इस कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के साथ. सो यू हैव टू गाइड अबाउट दैट, यू हैव टू इन्फॉर्म, you have to explain the importance of that particular course and to link that course with different occupations. The second one is career education. Complete information about career selection, need and importance. Different career opportunities मौजूद हैं. तो आपका स्टूडेंट, आपका क्लाइंट किस फील्ड में जाना चाहता है, किस करियर अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना चाहता है, और वो मेथड्स क्या होगा, वो टेक्निक्स क्या होंगी, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ की. तो आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू करियर अपॉर्चुनिटीज़. सो दिस इज़ कॉल्ड करियर एजुकेशन. तो इस तरीके से भी आप डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मालूमात डिसेमिनेट कर सकते हैं, मालूमात पहुंचा सकते हैं अपने क्लाइंट्स तक, अपने स्टूडेंट्स तक. तो तीसरी बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ करियर टॉक्स. तो करियर टॉक्स में आप डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस, वो आप डिस्कस कर सकते हैं. डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में बता सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से टॉक कर सकते हैं. सो इट्स एन ओपन टॉक. तो इसमें आप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को. सो नंबर नेक्स्ट इज़ विजिट्स टू प्लेस ऑफ वर्क. अरेंज विजिट्स टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्क. यहाँ पे आप ये करेंगे कि जो प्लेस ऑफ वर्क है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स और ऑक्यूपेशनल फैसिलिटीज़ हैं, और वहाँ पे आपके क्लाइंट्स और स्टूडेंट जा सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को गाइड करेंगे और उनको विज़िट के लिए लेके जाएंगे, उनको विज़िट करवाएंगे वहाँ पे, और वो वहाँ जाकर
वो प्लेस ऑफ वर्क को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, तो इस तरह से उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक्चुअली यू आर प्रोवाइडिंग द विजिट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्क एंड दे आर हेल्पिंग इन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑक्यूपेशन फॉर देम। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ करियर एग्जीबिशंस। इसमें आप एग्जीबिशंस कंडक्ट करवा सकते हैं जिसमें आपके स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट। इस तरह के एग्जीबिशंस में आपके स्टूडेंट अपना एक्टिव रोल प्ले करते हुए डिफरेंट ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड मटेरियल डिस्प्ले कर सकते हैं और वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं ऑक्यूपेशंस के हवाले से और वो जानना चाहते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के हवाले से, तो वो विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे जो डिस्प्ले होगा मटेरियल रिलेटेड टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, तो उनके बारे में उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है और इस हवाले से आप एज ए टीचर भी रोल प्ले कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि वो अपना एक्टिव रोल प्ले करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा और जितने भी लोग बाहर से आएंगे विज़िट करने के लिए उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ लाइब्रेरी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में अपना रोल प्ले कर सकती है। तो लाइब्रेरी में आप रेफरेंस मटेरियल रख सकते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, उसके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के हवाले से वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, वो रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, वो रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए वहाँ, और डिफरेंट जर्नल्स होने चाहिए, पम्फलेट्स हो सकते हैं, पब्लिकेशंस हैं, लेकिन ये सारा मटेरियल अथेंटिक होना चाहिए और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये तमाम मटेरियल आपको अलग से एक सेपरेट सेक्शन बनाना चाहिए और उस सेपरेट सेक्शन में इसको आप रखेंगे ताकि लाइब्रेरी में जो लोग भी आ रहे हैं अगर वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के हवाले से इंफॉर्मेशन मालूमात लेना चाह रहे हैं एंड इफ़ दे आर इंटरेस्टेड देन दे कैन विजिट द लाइब्रेरी एंड गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से वो बुक्स को पढ़ सकते हैं, वो रेफरेंस मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, वो डिफरेंट जर्नल्स को स्टडी कर सकते हैं। आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे जॉब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनसे पम्फलेट्स ले सकते हैं, वो पम्फलेट्स अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं उस अलग सेक्शन में। पब्लिकेशंस अगर हैं तो उनको आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक और सेपरेट सेक्शन जो आप बना रहे हैं इसमें अगर ये मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मटेरियल अगर अथेंटिक भी हो और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन भी हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके अदारे के स्टूडेंट्स के लिए भी और बाहर से जो भी विज़िट करने आएंगे लोग आपकी लाइब्रेरी में उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। एंड फाइनली देयर इज़ इंडिविजुअल कांटेक्ट। और अगर कहीं पे ज़रूरत है कि ग्रुप टेक्निक से इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रही किसी इंडिविजुअल तक और अगर आप समझते हैं कि आपके क्लाइंट तक, आपके स्टूडेंट तक ग्रुप मेथड टेक्निक को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाई, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड इन केस ऑफ स्पेशल हेल्प आप इंडिविजुअल कांटेक्ट की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं और हर इंडिविजुअल को अलग से डील करते हैं और उसकी तमाम इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसके फ्यूचर के हवाले से जितने भी कंसर्न्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ग्रुप मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप ऑक्यूपेशनल सर्विस ऑफ गाइडेंस प्रॉपर तरीके से अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा पाएँ और शेयर कर पाएँ।